नेपोटिज्म का मतलब क्या होता है? उन्होंने अब तक किस किस को लॉन्च किया है? सिर्फ स्टार किड्स ही है ना? हाँ. तो वो आरोप थोड़ी है, वो तो सच है. But I have no idea about this, so I won't be able to comment. Being an outsider, we have of course suffered from nepotism and favoritism and कि campism. जो टैलेंट है वो निकल के आना चाहिए, चाहे वो इंडस्ट्री से हो चाहे बाहर से हो. हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत अच्छी चीज़ों पे जानी जाती है. एक चीज़ की वजह से क्या बात का पतंग बन गया और रबर की तरफ खिंच चुकी है. Your talent only makes you survive. It's not easy for my daughter. She did her first film. It was a 40 crore film. They said it didn't work. And once that perception is created, they say it didn't work. She had to work towards her second film. Nobody gave her a chance after that. उनको मैं इंस्पिरेशंस मानती हूँ. प्रियंका चोपड़ा हो चाहे दीपिका हो, वो बाहर से आई हैं. बट लाइक यू हैव टू फाइट योर वे आउट. दैट्स व्हाट आई वांट टू से. यू हैव टू फाइट योर वे आउट. आप इस तरह से पूछ रही हैं जैसे कि ऐसा होता ही है ना, ये आपका assumption है ना मैम. In industry, we have a lot more democratic environment. Is also because of people like us who've been working at it. I see newcomers easily say, भाई मैं इंग्लिश में बात नहीं कर सकता, मैं तो हिंदी में ही बात करूँ. ये दो बंदे तो आपके सामने बैठे हैं 40 साल से, जो किसी भी फिल्म फैमिली के नहीं थे. ये फिल्म इंडस्ट्री में सबसे खूबसूरत बात ये है. Respect to everyone who's been embroiled in this controversy. मैं बोर हो चुकी हूँ उससे. Just one last question. One more debate that has been going on in the industry is about the nepotism that is in the industry. Both of you are not from the filmy background. So have you guys faced it when you were starting out? I think I just answered this question only yesterday when I said that almost all the films that I've done and all the films that I'm doing in the next 1.5 years, these are the films that I really wanted to do. Out of many options, I had this luxury of choosing these films. So from a personal point of view, I cannot complain. But having said that, it is not there. It is not that it's not there. It's there, and it's everywhere in all sorts of industry, just not Bollywood. And I feel that nepotism can peacefully coexist with the fact that if you just don't, if you allow new talents from outside to flourish and encourage them, then there's no problem with nepotism. But if you don't allow that, then there's a problem, and I think that the whole structure of the industry would collapse in some. नेपोटिज्म का मतलब क्या होता है? भाई भतीजावाद. हाँ. Well, you know, I feel that that's a very natural human emotion. You're asking me in general, na? Not specifically to that issue. नहीं तो आप specific question पूछिए. In general, I think it's a very normal human nature to try and help people who you love and who you care for. It's a very natural thing. It doesn't have to be someone who's part of your family. It can be someone who you care for. So that's a very natural emotion. I try and make sure that in my work, I don't try not to allow that to interfere, because I think that मेरी जो जिम्मेदारी है as a creative person वो अपनी audience की तरफ है, और उसको मैं सबसे ज़्यादा अहमियत देता हूँ. तो I try not to bring in emotions in my work. देखिए क्या है कि बाहर से जो लोग आते हैं उनको वाकई बहुत मेहनत करनी पड़ती है. कभी सक्सेसफुल हो पाते हैं, कभी उनमें से बहुत रह जाते हैं. और मेरा तो सिर्फ यही कंसर्न है कि जो टैलेंट है वो निकल के आना चाहिए, चाहे वो इंडस्ट्री से हो चाहे बाहर से हो, है ना. टैलेंट को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए. I think this day and age, your talent only makes you survive. I think people who are doing well, who are the industry kids like Ranbir, Varun, Alia, they are brilliantly talented. That's why they're surviving. And probably, if you're a star kid, you can get a good launch. But apart from that, it's your own talent which makes you stay there forever. And I think you have your stakes also very high. You have more pressure on you if you're a star kid. So I think right now, it doesn't really matter whether you're a star kid or not. That's what I feel. There is an elephant in the room. एक हाथी है रूम में जिसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते, या करना चाहते हैं तो फिर उसको ऊपर से, या हाँ है लेकिन फिर आ जाता है कि देर इज़ बट, बिकॉज देर इज़, जैसे कि मतलब बच्चन साहब बोलते हैं कि नाम में मगर की जो गुंजाइश नहीं होती, तो अगर है तो उसमें भी कोई मगर की गुंजाइश नहीं है. अगर है तो फिर उसमें देर इज़ नॉट वॉट इफ़, और देर इज़ नो नीड ऑफ बट. इट इज़ देर इज़ एन एलिफेंट इन द रूम विच वी रिफ्यूज़ टू fully accept. And being an outsider, we have of course suffered from nepotism and favoritism and campism, whatever you call it. लेकिन
क्योंकि सपना यही है करने का और काम यही जानते हैं, तो करना तो है ही। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस सब्जेक्ट के बारे में इतनी ज़्यादा बातचीत हो चुकी है कि कोई भी कुछ भी बोले तो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि हमारे बोलने से कुछ होने वाला है नहीं, यही चलता रहेगा, इसी तरह से चलता रहेगा। क्योंकि यहाँ की हमारी एज एन ऑडियंस ऑल्सो, एज अ कंट्री ऑल्सो, वी वुड लाइक टू नो अबाउट व्हाट, कि मतलब फलाना का बेटा क्या करता है या बेटी क्या करती है। वो एक चुगलगिरी हमारे अंदर है, तो वो पहुँच जाती है इंडस्ट्री तक भी। सवाल ये है वरुण कि करण जौहर की आपने बात की, करण जौहर ने आपको लॉन्च भी किया, उनके ऊपर ये आरोप लगाया जाता है बार बार कि वो सिर्फ और सिर्फ थोड़ा स्टार किड ऊंचा बोलना अरुण, नहीं सुनाई दे रहा। वो सिर्फ उनके ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ स्टार किड को लॉन्च करते हैं। किनके ऊपर लगाया जाता है? स्टार किड्स लगाते हैं उनके आरोप। करण जौहर। अरे पर कौन लगाता है आरोप? खुल के बोल, तू तो सवाल पूछ रहा है, जवाब मुझे देना है। तू तो पूछ। कंगना रनौत ने हाल ही में कहा कि करण जौहर सिर्फ और सिर्फ स्टार किड को लॉन्च करते हैं, तो आप क्या मानते हैं? आपने उनके साथ में काम भी किया है। उन्होंने अब तक किस किस को लॉन्च किया है? सिर्फ स्टार किड्स ही है ना? हाँ। तो वो आरोप थोड़ी है, वो तो सच है। उन्होंने सच बात बोली, बट करण ने बहुत सारे डायरेक्टर्स को भी लॉन्च किया है, जो जैसे शशांक खेतान, जो मेरे बहुत ही क्लोज मित्र है। ही इज फ्रॉम नासिक। उनका कोई लेना देना नहीं था फिल्म इंडस्ट्री से। ही वाज जस्ट अ बॉय हु केम विद अ ड्रीम। उन्होंने स्क्रिप्ट दी, करण को पसंद आई, और करण सेड आई बिलीव इन दिस बॉय, लेट्स डू इट। एंड उन्होंने फिल्म बनाई। बट एक बात, करण ने गिप्पी फिल्म बनाई थी। ही लॉन्च्ड अ गर्ल इन दैट फिल्म, राइट? करेक्ट, जो चिंकी ने डायरेक्ट की थी, गिप्पी। ही डिड। एंड सिद्धार्थ। ओके, एंड सिद्धार्थ थोड़ी ना इंडस्ट्री से भाई, शकुन भी नहीं है। But to a fair extent, what she's saying is right. I think this whole matter just got blown up. Yeah, I think she was just trying to get a point across. वो अपने तरीके से कुछ बोलना चाहती थी, और फिर लोगों ने बहुत खींच तान लिया। It's cool, होता रहता है। It's like I said, I think हम लोग एक fraternity है, पहले भी बोला था मैंने। Very recently, Karan Johar, Saif and Shahid Kapoor mocked and joked about nepotism at IFA. Would you want to share? Oh, I have no idea about this. I don't watch TV, guys. So, Can we please stick to the movie? but I have no idea about this, so I won't be able to comment. But what happened? We don't know. I don't know. Next question, please. आप दोनों से मेरा सवाल है, आप दोनों आउटसाइडर्स हैं इंडस्ट्री के लिए। नेपोटिज्म जो शब्द है वो कहीं ना कहीं आप लोगों को लगता है कि इंडस्ट्री में है, या फिर आप लोगों ने इसको कभी ना कभी फेस किया है? क्या आप लोगों को लगता है, आप दोनों के ओपिनियन क्या है इस पर? ये कि हम दोनों, बल्कि हम तीनों यहाँ पर हैं, हम तीनों बाहर से हैं, तो अगर हमारे खिलाफ कोई भाई भतीजावाद या नेपोटिज्म हुआ होता तो फिर हम होते ही नहीं ना। मैं अपने बारे में ये बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर हूँ तो it is only because of the love and affection of the existing film industry at that time that they listen to me. It's perhaps the only place that I truly belong. So I don't see it. I don't know about Anushka. अनुष्का, आपसे भी जानना चाहेंगे। Like what he said, if we are here today, it's because we are here today and we've reached where we are within the same, being within the same industry. I have personally, I would say, been launched by a banner like Yash Raj Films, who have always, and with me, with Ranveer Singh, they've always put talent before anything else. I don't even think this was something that I even thought of, quite honestly speaking, when I entered the industry. But at the same time, I think सबके experiences अलग होते हैं, and we all have to respect and value that. Yeah, that's it. Same industry में different people can be treated differently, and that has to be respected and valued. बट क्या आपको लगता है कि जो एक आउटसाइडर सॉरी मैम, वन लास्ट क्वेश्चन। हाय अनुष्का, लेट मी फिनिश दिस। ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग बाहर से, क्या एक आउटसाइडर जो होता है वो फिल्म यहाँ पर आने के बाद इतनी मेहनत करके, जैसे आप लोग हैं आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं, उसके बाद इंडस्ट्री के जो लोग होते हैं वो बुली करते हैं, इज दैट राइट? लाइक आप लोगों से जाना चाहिए। You are saying, you are asking whether it is right or आईफा wrong. के मंच पे हाँ जो हुआ। Listen, मैं सुन लिया आपकी बात,
आप इस तरह से पूछ रही हैं जैसे कि ऐसा होता ही है ना, ये आपका assumption है ना मैम. आई एम जनरली आस्किंग यू, I'm telling मैं you- नहीं कह रही हूँ कि ये ऐसा होता है. जी. ऐसा होता, अगर ऐसा है, होता जी. तो सही होता या गलत होता तो ऑब्वियसली गलत होता, राइट? ये तो कोई नहीं बोलेगा. हाँ, या वो तो नेपोटिज्म हर जगह ही होता है, ऑफ कोर्स वो सभी जानते हैं. और मैं बस ये कहना चाहूँगी कि लाइक जिनको मैं इंस्पिरेशंस मानती हूँ, प्रियंका चोपड़ा हो चाहे दीपिका हो, वो भी बाहर से आई हैं. बट लाइक यू हैव टू फाइट योर वे आउट. दैट्स व्हाट आई वांट टू से. यू हैव टू फाइट योर वे आउट. I'm talking to you, please look at me, because I'm personally answering your question just so that you can be satisfied. So it's not an objection. If you're talking about nepotism, it's an observation. I, as an individual, my prerogative is to leave my footprints behind for the ones who will follow me. And it's important that they know where I fell, where I walked, where I stayed, and where I ran. So it's important for me that I talk about my own experiences, not to say that people should not do what they like to do, but to make, what is relevant should be relevant, not because someone doesn't speak English or someone has sweat patches because they've come in a rickshaw for an audition, or someone is sharing an apartment with 10 people in an uncool location. They shouldn't be shamed for that, and the doors shouldn't be shut on their faces because of that. And I feel why I was avoiding it because it's a long answer, but also the fact that that today in an industry we have a lot more democratic environment is also because of people like us who've been working at it. I see newcomers easily say, भाई मैं इंग्लिश में बात नहीं कर सकता, मैं तो हिंदी में ही बात करूँगा, So it's because we have made it appear cool, isn't it? So we are going to make outsiders feel and appear cooler, and that is my prerogative as an individual. If I don't do that, then I'm not, what is the purpose of my journey? So this is healthy talk. I mean, what Bhatt Saab said is his perspective, and everyone has had perspectives to it, but outsiders who come in, outsiders as in, what is an outsider? There is nothing called an outsider. We're all working to make cinema, and anyone who's working for some other intention is an outsider. So A, I don't consider myself an outsider. B, whoever comes from unconventional background, they should work towards it and not call themselves, oh, we've been lucky enough because we did not face any discrimination, or, oh, we were the chosen ones because, industry has accepted us with open hands. No, because people like us have been working at it. If today people are working with actresses who come from, indie film backgrounds or are niche, so-called niche backgrounds, it's because we have made it mainstream today. Today we can say that a film like Queen has been made mainstream because people worked at it. So we should all work at it, and not to point fingers and not to make it sound like a fight, but to make the society more democratic for everyone. Okay. Nobody gave me a break. I wasn't a part of the industry. He's from South Bombay. I was a part of South Bombay, where we looked at cinema only in theatres. I hadn't even gone into a studio in my life. So it's my journey that I created, and if my child is getting an opportunity, why would anybody object? And why would you see politics? You see businessmen. No major corporate houses want to make sure that the next gen that takes over, the chairman that takes over, is other than from his family. Have you heard of that ever? He might have a CEO or a COO or a CFO, but the chairman is always the chairman, and that's family. So why hang us all the time, constantly? It hurts. Because it's not easy for my daughter. She did her first film. It was a 40 crore film. They said it didn't work. And once that perception is created, they say it didn't work. She had to work towards her second film. Nobody gave her a chance after that. So I think this needs to end sometime or the other, because it hurts the hell of a lot when people keep saying that. Somebody from the army who gives his life for the army, he wants his child to have that respect, because as a father, he's comfortable in that space, so he wants to see his child in the space that he's comfortable in. I won't want to send my child somewhere else where I don't know that world. सब अपने बच्चों के लिए वैसे ही सोचते ना, आप भी सोचते अच्छी स्कूल में जाना चाहिए, तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरे बच्चे अच्छी जगह जाए, और मेरे लिए सबसे अच्छी जगह मेरी इंडस्ट्री. I love my industry. I think it was very, very wrong
रॉन्ग किसी वुमेन जो कि अपने बलबूते पे आगे आई है उसका मजाक उड़ाना, एंड अगर 3 आदमी उड़ के मजाक उड़ाते हैं तो इट शोज द शेम एंड इट शोज दैट देयर इज स्टिल जेंडर इनइक्वालिटी एंड आई डेफिनेटली डोंट सपोर्ट इट. जेन्युइन क्वेश्चन, जेन्युइन. हाँ, ये जेन्युइन लग रही है. हाँ, ये जेन्युइन लग रही है. Can I have your comments on the whole nepotism debate that has been going on? You want nepotism का वो पेपर कल है, आज का सिलेबस अलग है. Yes, Atiya, you have a question. No, in all seriousness, I would like to answer that because what happens is it will just get misconstrued as a joke. It's something that's gone on for too long. हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत अच्छी चीज़ों में जानी जाती है. एक चीज़ की वजह से क्या बात का पतंग बन के वो रबर की तरफ खिंच चुकी है. आई थिंक वी शुड ऑल मूव अहेड. ये नेपोटिज्म का सवाल मैंने हाफ गर्लफ्रेंड के दौरान भी जवाब दे चुका हूँ. आप मेरे कोई भी इंटरव्यू उठा के पढ़ सकते हैं. हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है हम ऑडियंस के लिए पिक्चरें बनाते हैं. एट द एंड ऑफ द डे ऑडियंस डिसाइड करती है वो हमें बार बार देखना चाहती है या नहीं देखना चाहती. तो कोई भी यहाँ पे किसी के वजह से आ जरूर सकता है लेकिन टिक नहीं सकता. वो टिकता अपने बलबूते पे अपने काम के नतीजे से है और उस वजह से. So I think all of y'all also responsibly now should move ahead and find important and relevant things and the good things that the film industry is known for also, and not just one element that gives you headlines. हमारे पास बहुत कुछ अच्छी चीजें जो हो रही है film industry. Second, there's a ओके अनुष्का जैसे अभी दिलजीत ने कहा, अभी दिलजीत ने भी कहा कि आपने अपने बलबूते पे सब कुछ किया, यू नो, रब ने बना दी जोड़ी से लेकर अब तक. ब्रो आप चीख क्यों रहे हो? हाँ, वो मेरा माइक थोड़ा नजदीक है. जैसे अभी दिलजीत ने कहा कि आपने सब अपने बलबूते पे किया एंड वी ऑल एग्री, यू नो, रब ने बना दी जोड़ी से लेकर अब तक, चाहे वो NH10 का निर्माण करना हो, फिर उस फिल्म का कामयाब होना, इतने सेंसिटिव मुद्दे को उठाना और सब, मतलब इस इंडस्ट्री के नहीं होने के बावजूद इतना सब कुछ करना. इस पूरे कैरियर में कभी आपको नेपोटिज्म का, परिवारवाद का सामना करना पड़ा है? मैंने तो क्वेश्चन एक्सपेक्ट ही नहीं किया था. ऑफ कोर्स. हाउ स्ट्रेंज. वो आ गया, दिलजीत की मेहरबानी. क्या कभी ऐसा कुछ हुआ है? सीरियसली वांटेड टू नो. मैं आपको एक बात बताती हूँ, ठीक है? हम सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, सबकी अलग जर्नी होती है, सबके अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं. आई एम श्योर यहाँ पे जितनी भी एक्टर्स बैठे हैं स्टेज पे सब लोग इस बात का दावा कर सकते हैं. मेरा लॉन्च हुआ था यश राज फिल्म्स में. आदित्य चोपड़ा ने मुझे लॉन्च किया था. मैं आउटसाइडर हूँ और उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी फिल्म में लॉन्च किया. सिमिलरली उन्होंने रणवीर सिंह को लॉन्च किया है और उन्होंने परिणीति चोपड़ा को लॉन्च किया. हम तीनों ही कम्प्लीटली इंडस्ट्री के बाहर से हैं. एंड तो मेरे एक्सपीरियंस से आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर आदित्य चोपड़ा बिकॉज उन्होंने एक्टर्स कास्ट किए, यू नो, एंड मैंने पर्सनली कभी भी ये एक्सपीरियंस नहीं किया. ऑल्सो मुझे एक बात बहुत क्लैरिफाई हो गई थी मेरी बिगिनिंग मेरे करियर की, क्योंकि जो भी मुझे जिसे बोलते हैं एक मौकाम या एक जो मेरी लाइफ बदली है वो बैंड बाजा बारात के बाद बदली, यू नो, जब आई थिंक लोग मुझे थोड़ा ज़्यादा सीरियसली लेने लग गए. मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिला था मेरी पहली फिल्म में, बट जैसा बैंड बाजा बारात के बाद मिला वैसा नहीं था. तो वो फिल्म थी जिसमें मेरी लाइफ लिटरली बदल दी. एंड उससे मैं एक बात समझी हूँ कि उसके बाद से एक्चुअली कि अगर आप अच्छा कर रहे हो यहाँ पे तो लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे. अगर आप अच्छा नहीं कर रहे हो तो चाहे आप कुछ भी हो लोग आपके साथ काम नहीं करेंगे. यहाँ पे ये बिजनेस है, यहाँ पे सब लोग बहुत अपने क्या बोलते हैं बिजनेस डिसीजंस लेते हैं. और अगर आप चाहे आप अगर मतलब आप मुझे बताओ अगर कोई आउटसाइडर एक बहुत बड़ा स्टार है जैसे शाहरुख खान है तो कोई क्यों नहीं उनके साथ काम करना चाहेगा, यू नो. सो आई थिंक ये बट एट द सेम टाइम लेट मी से कि सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं. एंड मैं अपने एक्सपीरियंस पे कमेंट कर रही हूँ. मैं जितनी बड़ी हो रही हूँ और जितना मुझे लाइफ में समझ हो रही है उतना मैं जान पा रही हूँ कि हर इंसान के स्ट्रगल्स और बैटल्स बहुत अलग होते हैं. और मैं बहुत कम जजमेंटल होती जा रही हूँ डे बाय डे. तो मैं कभी किसी और के एक्सपीरियंस के बारे में जजमेंट नहीं डालना चाहूँगी बिकॉज उनके स्ट्रगल्स अपने और उनके बैटल्स अपने रहे हैं जिनके बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते. ठीक है, तो मैं बस अपने बारे में बात करूँगी. मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है और मैं आदित्य चोपड़ा को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ एज अ प्रोड्यूसर एंड एज ए ह्यूमन बीइंग कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी फिल्म में मौका दिया और कभी भी मेरे साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया. मानना है कि सिर्फ बॉलीवुड में नहीं हर जगह नेपोटिज्म है. आप कोई भी इंडस्ट्री में ले लीजिए, कोई भी फील्ड में ले लीजिए,
अगर मेरे फादर का कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस था, अगर मैं वो बिज़नेस ज्वाइन करता तो जाहिर सी बात है कि मुझे एडवांटेज होता बाकियों से जो बाहर से आ रहे होते। तो नेपोटिज़म हर जगह है, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि जो हमारा देश है वो बदल रहा है और हमारा जो लव अफेयर है लेगेसी से वो कम होता जा रहा है। तो वो हर फील्ड में दिखाई देता है। अगर आप फिल्मों में देखें तो लॉट ऑफ आउटसाइडर्स आर ब्रेकिंग थ्रू। अगर आप पॉलिटिक्स में देखें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद आउटसाइडर हैं। अगर आप बिज़नेस में देखें तो लॉट ऑफ मल्टी-बिलियन डॉलर कंपनीज आर नाउ फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारा रोमांस था लेगेसी से वो ख़त्म हो रहा है और आजकल जनता ये नहीं सोचती कि आप कौन हो और किसके बेटे हो या किसके भतीजे हो, वो सोचती है कि आप क्या कर सकते हैं। Oh God, I have nothing to say about nepotism. Please leave me out of this. आजकल नेपोटिज्म का बड़ा हर तरफ उसकी चर्चा है, नेपोटिज्म ये वो। आप सा शब्द है मतलब क्या हुआ? सर इनके दिमाग में दूसरा एन वर्ड है, विच इज नसबंदी राइट नाउ। तो एंड सनी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इससे आप इत्तेफाक रखते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए उसी वजह से हम लोग ये पिक्चर बनाई है हमने, नसबंदी पर है। सो आई थिंक दैट विल टेक केयर ऑफ हियर ऑल। तो हम क्या है कि आपने देखा होगा गाहे बगाहे आते हैं, शायद इसलिए कुदरत ने सोचा कि रोज़ का आना जाना कदर खो देता है, लेकिन गाहे बगाहे जब आते हैं तो कुछ ना कुछ छाप छोड़ जाते हैं। तो दुआ करता हूँ उससे कि इस बार भी हम छाप छोड़ जाएं दिलों पे, दिमाग पे, जो अरसे तक याद रह सके। शोहरत तो आनी जानी है भाइयों, समंदर शोहरत के साहिल नहीं होते। मैंने देखे हैं एक से एक तैराक डूबते यहाँ। तो इस शोहरत को बनाए रखने के लिए मेरे ख्याल से मोहब्बत बहुत ज़रूरी है। मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती और हमने कोशिश की है कि शोहरत से कहीं ऊपर चल के मोहब्बत पैदा की जाए, दिलों में रहा जाए। तो आज भी एक एफ़र्ट की है ताकि हमारी मोहब्बत आपके दिलों में बनी रहे, आवाम में बने रहें। क्या है हमारी सेहत का राज? आप सबकी मोहब्बत। आप जब मोहब्बत करते हैं, हमारे जज्बात को सेंचते हैं, तो हम स्ट्रांग हो जाते हैं। आज भी सांस बैठा हूँ, कम नहीं लग रहा। पर ये जो जैसे कह रहे थे कि मतलब फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को अवसर ज़्यादा मिल जाते हैं, इसी विषय को आजकल हास परिहास के रूप में लोग करने लगते हैं, वो ठीक मानते हैं आप? जैसे कभी अवार्ड फंक्शन में हमने देखा कि लोग उस चीज़ को लेके हास परिहास करें। डू यू फाइंड दिस? किस चीज़ को लेके? क्या कहते हैं शब्द? नेपोटिज्म। हाँ, देखिए मैं आपको ये बात बिल्कुल बता दूं कि ये दो बंदे तो आपके सामने बैठे हैं 40 साल से, जो किसी भी फिल्म फैमिली के नहीं थे। ये फिल्म इंडस्ट्री में सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें जात पात धर्म परिवार कुछ नहीं है, सिर्फ टैलेंट का कंपटीशन है। उनके भी बच्चे जो हैं बहुत टैलेंटेड हैं तो आ जाते हैं, अगर नहीं है तो रह जाते हैं। और देश के भी जितने बच्चे हैं टैलेंटेड हैं वो आ जाते हैं, चाहे दिल्ली से हों या पटना से हों या उधर से हों। कंपटीशन जो है इस सबसे खूबसूरती फिल्म इंडस्ट्री की यही है कि इसमें कुछ भी नहीं चलता है सिवाय टैलेंट के और मेरिट्स के। हमने देखा नहीं वो प्रोग्राम तो हमें उसको कमेंट नहीं कर सकते। हमने सुना नहीं, मैं कुछ नहीं बोल सकता। उन्होंने बोला नहीं। With due respect to everyone who's been embroiled in this controversy, मैं बोर हो चुकी हूँ उससे। कौन किस पक्ष में है, किसका क्या कहना है, मुझे उससे अगर मैं वो शब्द पढ़ूं तो मैं पेपर मतलब मोड़ दे, नेक्स्ट पेज पन्ना में पलट देती हूँ, क्योंकि इससे अब क्या मतलब एक चीज़ को लेके किसी ने कुछ कहा, वो सब हो गया कुछ महीने पहले, अब फिर से कुछ बखेड़ा खड़ा हो रहा है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, सॉरी। मैं नहीं मानता गॉडफादर गुरु वगैरह सब ये सब ढकोसले हैं। मुझे ऐसा लगता है जिसको एक्सपीरियंस ऐसा होगा जिसके माँ बाप फिल्म इंडस्ट्री में उनको एक्सपीरियंस होगा, या जिन्होंने खूब चापलूसी की होगी या खूब पैर पकड़े होंगे, उनके गॉडफादर होंगे। पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता मेरा कोई गॉडफादर है और ना ही मैं कुछ बात को मानता हूँ। थैंक यू सो मच।